کچھ وقت ایسا ہے جس وقت میں ہمیں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ کچھ وقت ایسا ہے جب نماز نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی دن میں 3 وقت ایسے ہیں جب ہمیں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ کوئی بھی نماز، نفل نماز یا قضا نماز یا کوئی بھی نماز ہمیں اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے۔ دن میں 3 وقت ایسے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو صبح کے ٹائم تو اس وقت کوئی نماز نہ پڑھیں یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر نکل آئے، یعنی اس کی جو ٹکیا طلوع ہو رہی ہے اس کا اوپر کا کنارہ نظر آتے آتے جب تک نیچے کا کنارہ نظر نہ آئے، یعنی گول سورج کا پورا گول گھیرا جب تک نہ نکل آئے تب تک کوئی بھی نماز یا نفل نماز، قضا نماز یا کوئی بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور دوسرا ٹائم ہے جب سورج ڈوب رہا ہو، تو سورج کی گول ٹکیا جب تک پوری طرح سے غائب نہ ہو جائے اس وقت نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک تو فجر کے ٹائم پہ جب سورج اگتا ہے، سورج اگنا جب چالو کرتا ہے تب سے جب تک پورا سورج اوپر تک گول نہیں نکل آتا، ٹکیا اس کی گول پوری نہیں نکل آتی، اس وقت میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور ایک مغرب کے ٹائم پہ جب سورج ڈوبتا ہے، اور تیسرا وقت جب سورج اوپر آسمان میں بالکل سینٹر میں ہوتا ہے، یعنی زوال کا ٹائم جو بولتے ہیں، تب نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اوقات کے اندر جنازے کی نماز اور جہاں تک کہ مردے کو دفنانے کے لیے بھی منع کیا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت صرف 5 سے 7 منٹ کا ہوتا ہے، یعنی وہ کون سا وقت ہے جن میں ہم نماز ادا نہیں کر سکتے۔ زوال کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جس وقت نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ پہلا، صبح جب سورج نکلتا ہے، تب صبح سورج نکل رہا ہو تو تقریباً 20 منٹ تک نماز نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی سورج کی جو گول ٹکیا ہے جب تک وہ پوری طرح سے نہ نکل آئے، یہ وقت تقریباً 20 منٹ کا ہوتا ہے، تب کوئی بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، یا نفل نماز یا قضا نماز، کوئی بھی نماز اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور دوسرا، دوپہر میں زوال کے وقت جب سورج بالکل بیچوں بیچ ہو تب بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ اور تیسرا، جب سورج ڈوب رہا ہو، یعنی اس کی ٹکیا پوری طرح سے ڈوب نہ جائے، تب بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ یہ وقت موسم کے حساب سے گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں، یعنی موسم کے حساب سے وقت بدلتا رہتا ہے، ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے جس دن آپ کو دیکھنا ہے تو آپ نماز کی جنتری میں دیکھ لیں کہ سورج نکلنے کا کیا وقت ہے، غروب ہونے کا کیا وقت ہے اور زوال کا وقت کیا ہے۔ یہ آپ جنتری میں دیکھیں گے تو آپ کو اوقات معلوم ہو جائے گا۔ اب قضا نمازوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو عام طور پر لوگوں سے سنا ہے کہ پہلے قضا نمازوں کو پڑھنا چاہیے، فرض نماز بعد میں پڑھنا ہے۔ جیسے ہماری فجر اور ظہر کی نماز چھوٹ گئی ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ جب عصر کی نماز پڑھیں گے تو پہلے فجر اور ظہر کی قضا نماز پڑھنا ہے اور عصر کی نماز اس کے بعد میں پڑھنا ہے۔ شاید ایسا آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ تو ہم اب اس کا مسئلہ کیا ہے، یعنی پہلے قضا نماز پڑھنا چاہیے یا پہلے فرض نماز پڑھنا چاہیے، تو اس سلسلے میں بہت اہم فیصلہ ہے جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ صاحب ترتیب، یہ ایسا لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں، صاحب ترتیب ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی پوری زندگی بھر اس نے ایک بھی نماز قضا نہیں کی ہو، یا اگر نمازیں قضا ہوئی بھی ہوں تو اس کے ذمے 5 نمازیں یا 5 نمازوں سے کم نمازیں، یعنی 5 نمازوں سے کم قضا نمازیں اس کے ذمے ہوں، تو ایسے انسان کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے۔ مان لو کہ آپ کی بہت ساری نمازیں چھوٹ گئیں اور وہ ساری نمازیں آپ نے قضا پڑھ کر ادا کر لیں، اب آپ کے اوپر ایک بھی نماز قضا نہیں ہے، یعنی ساری نمازیں آپ نے ادا کر لیں، تو آپ بھی صاحب ترتیب کہلائیں گے۔
कोई भी इंसान बालिग हुआ जब से एक भी नमाज उसकी नहीं छूटी थी, या छूटी थी तो उसने मतलब क़ज़ा पढ़कर अदा कर ली। यानी जब भी उसकी कोई नमाज क़ज़ा होती थी तो वो उसे पढ़ लिया करता था। अब उसके ज़िम्मे एक भी क़ज़ा नमाज नहीं है तो वो शख्स साहिब तरतीब या क़ज़ा नमाज उसके ज़िम्मे है। 3 या 4 नमाज या 5 नमाज या 5 नमाज से कम अगर क़ज़ा नमाज उसके ज़िम्मे है तो उस शख्स को साहिब तरतीब कहते हैं। कोई शख्स साहिब तरतीब है यानी उसकी सारी नमाज़ें अदा हो गई हैं और 5 नमाज या उससे कम नमाज़ें बची हैं, उसे साहिब तरतीब कहते हैं। और साहिब तरतीब की कोई नमाज क़ज़ा हो गई है तो उसके लिए मसला ये है कि जैसे किसी साहिब तरतीब की फ़जर की नमाज छूट गई और ज़ोहर की नमाज छूट गई, तो वो साहिब तरतीब अगर असर की नमाज पढ़ेगा तो असर की नमाज पढ़ने से पहले दोनों क़ज़ा नमाज़ें पढ़े। तो उसके लिए हुक्म है कि पहले वो असर की नमाज़ पढ़ने से पहले दोनों नमाज़ों की यानी फ़जर और ज़ोहर की नमाज़ों की क़ज़ा पढ़ेगा, फिर असर की नमाज़ पढ़ेगा। ये वाली बात साहिब तरतीब के लिए है। अगर आप साहिब तरतीब हो और आपकी एक नमाज छूट गई है, 2 नमाज छूट गई, 3 नमाज छूट गई, 4 नमाज छूट गई या 5 नमाज़ें छूट गई, 5 लास्ट है मतलब साहिब तरतीब के लिए 5 क़ज़ा नमाज़ें या 5 नमाज़ों से कम। बस अगर आप साहिब तरतीब हैं और आपने पहले असर की नमाज़ पढ़ ली और पहले क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ी तो आपकी नमाज़ें यानी आपकी असर की नमाज़ फासिल हो जाएगी। यानी जो साहिब तरतीब है उसे पहले क़ज़ा नमाज पढ़ना है, जैसे 1 नमाज, 2 नमाज, 3 नमाज, 4 नमाज, 5 नमाज। 5 नमाज से कम या 5 नमाज तक अगर क़ज़ा है तो वो साहिब तरतीब कहलाएगा। और उसके लिए ये है कि पहले उसको क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना है और फ़र्ज़ नमाज बाद में पढ़ना है। अगर उसने क़ज़ा नमाज़ें नहीं पढ़ी साहिब तरतीब ने और फ़र्ज़ नमाज पहले पढ़ ली तो उसकी जो फ़र्ज़ नमाज वो पढ़ेगा वो नमाज फासिल हो जाएगी। अगर आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं तो अगर किसी शख्स की 5 नमाज़ों से ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं तो वो साहिब तरतीब नहीं है। यानी साहिब तरतीब को सिर्फ 5 नमाज़ों का है या 5 नमाज़ों से कम क़ज़ा होना चाहिए। अगर 5 नमाज़ों से ज़्यादा उसकी क़ज़ा हो जाती है तो साहिब तरतीब का टाइटल उसे नहीं मिलेगा। अब जो साहिब तरतीब नहीं है तो उसके लिए ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर वो चाहे, जैसे कोई भी शख्स अगर साहिब तरतीब नहीं है यानी उसकी बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हैं तो वो कभी भी मतलब कोई भी नमाज़ पढ़ सकता है। जैसे वो फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने से पहले क़ज़ा नमाज़ भी पढ़ सकता है या पहले फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ ले, क़ज़ा नमाज़ बाद में पढ़ ले। अगर आप साहिब तरतीब नहीं हैं तो फिर चाहे जैसे नमाज़ें पढ़ें, जैसे किसी की 8 नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं, पूरी ज़िंदगी की सारी नमाज़ें उसने अदा की हैं तो वो ये 8 नमाज़ें क़ज़ा पढ़ लेगा तो फिर वो साहिब तरतीब हो जाएगा। अगर आप साहिब तरतीब नहीं हैं तो आप चाहें तो पहले क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें फिर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ें या पहले फ़र्ज़ नमाज़ पढ़कर फिर क़ज़ा पढ़ें, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। सिर्फ़ साहिब तरतीब को ही फ़र्ज़ नमाज से पहले क़ज़ा नमाज़ पढ़ना है। अगर उस साहिब तरतीब ने भूल से पहले फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ ली तो कोई बात नहीं है, भूल की माफ़ी है। लेकिन अगर जानबूझकर पहले फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ ली और उसकी फ़र्ज़ नमाज फासिल हो जाएगी, उसको पहले क़ज़ा नमाज पहले पढ़ना है, फ़र्ज़ नमाज बाद में पढ़ना है, जो साहिब तरतीब है उसे। अब क़ज़ाए उम्री के बारे में बात करते हैं। हम अक्सर अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगते हैं, वो जो भूल कर गुनाह हुए हैं, लेकिन जो गुनाह हमने पूरे शऊर से किए हैं और अब भी करते हैं, उनसे किस अल्फाज में माफ़ी मांगी जाए। सबसे बड़ा गुनाह नमाज़ों का छोड़ना। हमसे जो नमाज़ें छूटी हैं, जो हमारे ज़िम्मे हैं और जो हमें क़ज़ा के तौर पर पढ़ना है। क़ज़ा नमाज़ें कैसे पढ़ी जाएं? हमारी जो नमाज़ें छूटी हैं, एक होता है क़ज़ाए उम्री, यानी बहुत सारी नमाज़ें छूट गई हैं
उनको कैसे पढ़ा जाए। और एक होती हैं आज कल की जो नमाज़ें छूट गई हैं, यानी कि आज कल परसों 5 दिन पहले 10 दिन पहले की जो नमाज़ें छूटी गई हैं, एक वो नमाज़ें, उनको कैसे पढ़ा जाए। क्या क़ज़ा नमाज़ों को जब हम पढ़ेंगे तो क्या सुन्नत और नफिल भी पढ़ने पड़ते हैं? इसकी नीयत कैसी होगी, किस वक्त में इसे पढ़ा जा सकता है? आज हम इन सारे मसाइल पर बात करेंगे। पहले तो क़ज़ा और अदा का मामला समझते हैं। जो नमाज़ें वक्त पर पढ़ी जाती हैं उसे अदा कहते हैं, और वक्त निकल जाने के बाद या हमारी जो नमाज़ें छूट गई हैं उसे हम बाद में पढ़ते हैं, उसे क़ज़ा नमाज कहते हैं। किसी नमाज का वक्त है, यानी वक्त पर नमाज़ पढ़ी, उसे अदा कहते हैं, और वक्त निकल जाने के बाद जो नमाज़ पढ़ते हैं उसे क़ज़ा कहते हैं। मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, और नमाज वो है जो अल्लाह का हक़ है। तो नमाज जो हमारे ज़िम्मे है, जो वक्त पर नहीं पढ़ पाए तो वो क़ज़ा हो जाती हैं। इसी तरह हम दुनिया से चले गए तो आखिरत में हमसे सवाल होगा कि हमने दुनिया में नमाज़ें क्यों नहीं पढ़ी। इसलिए जो नमाज़ें हमसे छूट गई हैं वो पढ़ना भी फ़र्ज़ है। जैसे हमारे लिए फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ना ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक नमाज मुसलमानों पर मुकर्रर वक्त पर पढ़ना फ़र्ज़ है। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज़ पढ़ना भूल जाओ या सोते रह जाओ या गफलत में तुम्हारी नमाज़ छूट जाए या तुम्हारी वैसे भी नमाज़ छूट जाए तो जैसे ही याद आए फ़ौरन अदा कर लो। तो अगर गलती से नमाज़ छूट जाए तब फ़ौरन नमाज अदा करने का हुक्म है। आजकल तो जानबूझकर नमाज़ें छोड़ी जा रही हैं, तो उसे तो क़ज़ा पढ़ना ही पड़ेगा। तो क़ज़ा और अदा का मतलब समझ आ गया होगा। अब नीयत का मामला समझिए। नीयत कहते हैं दिल के इरादे का नाम। एक होता है क़ज़ाए उम्री, और एक होती है फ़िलहाल में जो नमाज़ें छूट गई हैं, यानी कि कल की छूट गई, परसों की छूट गई, 4 या 6 दिन पहले की छूट गई, यानी जो नमाज़ें हमें याद हैं। जैसे हमें याद है हमारी कल की नमाज़ छूट गई, तो इसको कैसे पढ़ा जाए? तो सिंपल है, इस नियत से के साथ नमाज़ पढ़ने खड़े हो जाएं कि या अल्लाह, मेरी जो कल की नमाज़ छूटी थी ज़ोहर की, इस नियत से पढ़ें तो ऐसे पढ़ें कि नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज फ़र्ज़ कल के ज़ोहर की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। बस ये आपकी नियत हो जाएगी। अब क़ज़ा नमाज़ों में सिर्फ़ फ़र्ज़ ही पढ़े जाते हैं, सुन्नत और नफिल नहीं पढ़े जाते। हाँ, वित्र पढ़े जाएंगे। अब क़ज़ा नमाज़ों को किस वक्त पढ़ा जाए? तो क़ज़ा नमाज़ों को आप कभी भी पढ़ सकते हैं। बस 3 वक्त में जो शुरू में बताया गया है, वीडियो के शुरू में जो 3 वक्त बताया है, बस उन 3 वक्त में नहीं पढ़ी जाती। अब हमारी वो सारी नमाज़ें, जो बहुत सारी नमाज़ें छूटी हैं, उसे क़ज़ाए उम्री कहते हैं, जो हमें याद नहीं है। तो क़ज़ाए उम्री पढ़ने का आसान तरीका क्या है? इतनी सारी नमाज़ें कैसे आसानी से अदा की जाए? हमें पता नहीं होता कि हमारी कितनी नमाज़ें छूटी हैं। तो अब ये पता करने के लिए तो आप अंदाज़ा करें, जितनी भी आपकी ज़िंदगी है, बालिग होने के बाद से आपकी कितनी नमाज़ें छूटी हैं। अंदाज़ा करें, जैसे अगर आपका दिल गवाही दे कि हमारी 1 साल की नमाज़ छूटी है, या 2 साल की नमाज़ छूटी है, या 3 साल की नमाज़ छूटी है, तो थोड़ा सा अपने दिल में हिसाब लगाइए, अंदाज़ा करिए। और आपके दिल ने जैसे कहा कि मेरी 3 साल की नमाज़ या 5 साल की नमाज़ छूटी है, तो आप उसे डायरी में नोट कर लीजिए। और एक तरीका तो ये है कि आप जब भी नमाज़ पढ़ें, उस नमाज की वक्त आप उसी वक्त की क़ज़ा नमाज भी पढ़ लें। जैसे फ़जर की नमाज़ पढ़ी है तो आप साथ में एक नमाज फ़जर की क़ज़ा भी पढ़ लें। फिर ज़ोहर के वक्त ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ लें, असर की नमाज में असर की क़ज़ा पढ़ लें, मगरिब की नमाज में मगरिब की क़ज़ा, और इशा की नमाज में इशा की क़ज़ा पढ़ लें। अगर आप रोज़ पढ़ लें तो आपकी एक साल में 1 साल की क़ज़ा नमाज़ें भी हो जाएंगी। ये सबसे आसान तरीका है।
2 साल होंगे तो 2 साल की नमाज़ें क़ज़ा हो जाएंगी। ऐसे आपकी क़ज़ा नमाज़ें आसानी से अदा हो जाएंगी। और कॉपी में लिखते जाइए। क़ज़ा नमाज में सिर्फ़ फ़र्ज़ ही पढ़ना है। जैसे फ़र्ज़ की नमाज की क़ज़ा पढ़ रही हैं, सिर्फ़ 2 रकात फ़जर की पढ़ रही हैं तो 2 रकात नमाज फ़जर की पढ़ना है। और ज़ोहर में सिर्फ़ 4 रकात, असर में भी 4 रकात, 4 फ़र्ज़, मगरिब में 3 फ़र्ज़ और इशा में 4 फ़र्ज़ और 3 वितर। और नियत ऐसे करना है, नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ, मेरी सबसे पहले छूटी हुई 2 रकात नमाज या 4 रकात नमाज फ़र्ज़ या ज़ोहर जो मेरे ज़िम्मे है, ख़ास तौर पर ख़ास वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। बस ऐसे ही पढ़ते जाएं, आपकी सारी नमाज़ें अदा हो जाएंगी। भाइयों और बहनों, नमाज़ों का ख़याल रखिए। इसकी पकड़ होगी, इसका हिसाब होगा। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, इसलिए आप फ़िक्र से नमाज में लग जाइए। कोशिश करें 5 वक्त की नमाज़ें वक्त पर अदा करें। और जो गलती से हमारी नमाज़ें छूट गई हैं, डायरी में उसका हिसाब लिखें और सारी नमाज़ें जो क़ज़ा हुई हैं उसे अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दे कि हम सारी नमाज़ें जो हमारे ज़िम्मे हैं उसे क़ज़ा पढ़कर अदा करें और वक्त पर नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमें 5 वक्त का नमाज़ी बना दे अल्लाह पाक और इबादत गुज़ार बना दे। आमीन सुम्मा आमीन।